आपको सीधे हैदराबाद लिए चलते हैं, जहां पर एमपी निवेश अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो रहे हैं। Leading the way. Why we talk about tier 2 cities is a very simple thing. Everybody who is growing now is looking for an additional second location. And if you are looking for a second location, if you want to branch out, you have to go to tier 2 cities. You don't want to be bowed down by different T's that bother you, that trouble you. You have saturation of talent availability. You have limited availability as far as the real estate is concerned. And all of these, as a city, tier 2 cities like Bhopal and Indore prefers and is offers to each one of you in a much better way. It's in terms of talent pool, it is much cheaper, at least by 30%. It's arbitrage in real estate. You invest today in the real estate, you get a return on investment and a much, at least about twice what you would get it in tier 1 cities. The STPI's presence is more in tier 2 cities, and finally the tech startups in the country is growing, and they are more now put together than the tier 1 cities. If you talk about, if you talk about why we are talking about tier 2 cities again, if you see the talent war, it's there. You have now sufficient number of people around in the city, in the tier 2 cities, which leads to a lot of opportunities. There's a quality of life. You have as Raghavendra has just mentioned, we have the cleanest city in a row for last 8 years. No other state could actually have a city which is taken up as the cleanest city for continuous 2 years. We have been clocking it for 8 years. We have the cleanest capital. We are amongst the cleanest state. We have on an AQI index, Jabalpur and Indore, two of our towns are rated as the best clean air in the whole country. And this is not by any data by anybody, it is by the Government of India data science. So what we are talking about is not about only the talent and the technology. We are talking about multiple T's which bother most of the industries and most of the IT companies. It's more about infrastructure to life structure. Enough of infrastructure. You have it in every place. You have it in Bhopal, you have it in Indore. But what about your life structure? Have you thought of it that whether you have a work-life balance? How much time do you spend traveling from one place to another? The other day, yesterday, when I was traveling from airport to this place, it took me 1 hour 30 minutes. I said in this time, I would have traveled from Indore to Bhopal. The twin cities, which offer more than 200 flights between the two of them. This is the kind of infrastructure that we have created for ourselves. And think about it. It's no more a CEO, which is Chief Executive Officer. You have to start looking as Chief Empathy Officer. And empathy would come, then only you would have a satisfied people within your company, and that would be where you would have happiness. And that is what Bhopal and Indore put together offers. And why I say this? It's because you have culture, you have cuisine, you have cosmopolitan nature. We celebrate each of the celebration, whether it is Sankranti, Pongal, Garba, Durga festival, Ganesh Chaturthi, you have all of them. Why? Because we are landlocked, and Madhya Pradesh is composite cosmopolitan culture of whole of India. We have all kinds of cuisine. Yesterday when I was in one of these restaurants, they said, "Sir, ये आंध्रा स्टाइल में खाना बनाया हुआ है." I said, मध्य प्रदेश में तो हम हर स्टाइल में खाना बनाते हैं. हम गुजराती स्टाइल में भी खाना बनाते हैं, बंगाली स्टाइल में भी खाना बनाते हैं, मद्रासी स्टाइल में भी खाना बनाते हैं, मारवाड़ी स्टाइल में भी खाना बनाते हैं. So the point that I am trying to make, if your employees are coming from any of these towns, they would be very happy to stay put, and they will not like to leave ever. And what Raghavendra was also saying, once you come to Indore, once you come to Bhopal, once you come to Madhya Pradesh, you will never ever intend to go out and go back. It's full of environment, it is full of social life. So best of the schools. How many of you would ever be knowing Shrewsbury, which is 185-year-old school in UK, London? Its second campus, I'm talking about second campus, is opened in Bhopal with 185 acres of land. Its yearly fees is 25 lakh rupees, boarding school. Which other school has, why they have chosen Bhopal? Because of its environment, because of its nature, because of its culture.
This is a kind of educational infrastructure that you have. The best of the schools are there, the best of the social life is there, and that is what we are selling it to each one of your employees. So this I already mentioned. Between, if you have to travel Bengaluru, 26 kilometers average speed. If you are traveling in Hyderabad, it is about 26 kilometers. It is about 58 kilometers. If you are traveling from one place to another in Madhya Pradesh, that is what we offer. We talk about clean air, we have smart spaces. These twin cities create so much of an opportunity for all of this. And Honorable Chief Minister has created an industrial corridor between the two cities. So you have an access to two airports, you have an access to two railway lines, you have an access to the citizens and the educational institution of these two cities. So that is what it is. And top of it, if you talk about the startup culture, if you see, remove tier 1 cities out of this map, you would find that Madhya Pradesh figures right in the heart of the startup culture. We have more than 5,000 startups which have, some of them have grown as some the unicorns, and that is not only limited, but it is counting. If you talk about from any of the parameters, any of the matrices, you would see whether it is availability of talent, whether it is technical availability of technical institutions, national important institutions, it is always green between Bhopal and Indore. If you talk about costs on your investment, again it is green. Office rentals are way below than any of the city which are tier 2, and I am comparing with the tier 2 cities, I am not comparing with tier 1 cities. Electricity charges, the salaries, each and everything, despite having the best of the talent that come out from IIT Indore or IIM Indore or IISER Bhopal, you would realize that these are the institutions, AIIMS Bhopal, these are the institutions which generate so much of a human resource, yet you would find them at a very, very reasonable rates. Ease of doing business, as Raghavendra has mentioned, and Honorable CM has been at forefront. He has been driving us, forcing us to go ahead, and very recently, Honorable Chief Minister received the best Ease of Doing Business Award from Government of India for Madhya Pradesh because of our policies and our nature. So you talk about cost of living, whether talk about specialty hospitals, environmental parameters. In each of these parameters, we figure in green, not in yellow or in red. And the best part is, Madhya Pradesh, Honorable CM on 13th of this month have announced 2,000 acres of knowledge and AI city closer to Bhopal airport. No other city, no other state has that kind of AI and knowledge city coming up in any part of the country, where if you come to Madhya Pradesh, if you come to Bhopal and Indore, you would have an opportunity to have a complete ecosystem of developing your ITES enabled information system, enabled industry, enabled manpower. And when we talk about this, obvious question comes to our mind is, what about the policies? Do you have a policy? What are the incentives that we have? What is it that we get out of it? And you would see that for each of these, we have a targeted policies that we have created. So within the IT policy, we have three verticals, which is IT, ITES, and ESDM, along with the data center. And if you would see that each of this, we have realized that for what vertical, what is more important. Say for example, data center, the vertical is your raw material is electricity. So we are giving 2 rupees per unit exemption on the charges that we charge for a normal industry. That is where we feel that data centers are important for us. When we talk about ESDM, we are saying for IP creation, we will help you out. We will give you the subsidies. For certification and testing, we will give you the subsidies. So each and every vertical of our policy is tailor-made to address the need of that particular specific requirement of that policy, of the industry. We have a specific GCC policy, one amongst few states which have published it. Again, whether it is capital support or talent support or innovation. To just give you an example, if an employee has been working in GCC in Hyderabad or Bengaluru, if they get relocated, we pay 1 lakh rupees per month per employee for relocation of a GCC talent which has migrated from any of the tier 1 cities. Which other state offers this kind of a opportunity for any of the industry to bring in? We provide support for reskilling for an employee who is now a GCC employee, because you would like to use them for a betterment. So 50,000 rupees per month per employee is what we give
for a reskilling of a GCC employee. Now this is again tailor made based on it. That is an excellent thing, not to every time going to the department and sir मेरा पैसे दे दो सर मेरा है ये साल का इतना है ये साल का इतना है. That is not necessary. In the bill itself, it reduced that. It is whatever it is, practically I am telling. And one more thing, one problem also is there. They will give the subsidy on the what is your production capacity and all these things. Divided by, if you have got the 100 rupees, divided by 7. Every year they will give, divided by 7, up to 7 years they will give that money. That also, what you have given the production capacity, in that minimum you have to do the production capacity 50% has to be. Otherwise it won't come. Whatever the pro ratio it will come. Because it should not waste and no man they are put like that. And तो निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है और यहाँ पर तमाम निवेशक पहुंचे हुए नए अवसर और आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव। अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका अमूल्य संदेश प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान CII के चेयरमैन शिव प्रसाद रेड्डी जी, आदरणीय महेश कोहली जी, फाउंडर ग्रुप प्रेसिडेंट क्रिनको, श्रीमान किरण चंद्र कल्लूरी जी डलास, आपका भी स्वागत है। जयदेव मिला जी ने ज़्यादा ही तारीफ कर दी, आपका भी अभिनंदन है। के रवि कुमार जी, आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर सुब्बा राव जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अनंत टेक्नोलॉजी में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान SCS संजय दुबे जी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप हमारे PS हैं, SCS हैं। PS राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली। इस अवसर पर भाग्यनगर के, हैदराबाद के सभी अलग अलग क्षेत्र के स्वनाम धन्य महानुभाव मित्रों, यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। और यहाँ महालक्ष्मी की अलग अनंत कृपा है। वैसे तो मैं हीरा प्रदेश से भी आता हूँ। हमारे राज्य में, पूरे देश में एकमात्र राज्य प्रदेश है जहाँ हीरा निकलता है, और मोती आपके पास है तो हीरे मोती की जोड़ी भी हमेशा कभी भी जोड़ के ही बोली जाती। ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। और आप सबकी भी मैं दिल से मध्य प्रदेश की ऊर्जा, संभावना, संकल्प लेकर आपका स्वागत करने भी आया हूँ कि मुझे मालूम है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी बड़ी हस्तियाँ भी है, जो सभी दौर के, सभी समय में, सभी व्यवस्थाओं के अनुभवी भी है। और जब
देश की तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। मैं अपने विभागों के सारे अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं और ये खुले मन से स्वीकार भी करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो शासन का समय चल रहा है, मैं तो क्या आप सब जानते और आप तो क्या दुनिया जानती है, आज का समय भारत का समय है और भारत के समय में दुनिया के सब बड़े से बड़े देश अलग अलग प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। जो स्वनाम धन्य मुखिया होते हैं, सबसे बड़े अपनी श्रेणी में बैठने वाले लोग हैं, वो चेहरे से तो अलग दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो हम रोज़ देखते हैं। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों को समेटते हुए देश की जो एक नई प्रकार की आभा बनाई है, नया प्रकार का चित्र बनाया है, जिसमें कई सारे मिथक तोड़ दिए। अतीत के काल के भारतीय मतलब समय का पालन नहीं करेंगे, भारतीय मतलब प्रोग्रेसिव होने के बजाय पीछे की लाइन से नंबर आता है, भारतीय पता नहीं कितने प्रकार के जो हमारे मन में और सारी बातें चलती। अब तो कितना अच्छा लगता है कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है, रेल से लगा करके हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश के, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है क्या? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करना चाहूँ। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर हमारे यहाँ रेल कोच बनाने के लिए भी कौन आया, राघवेंद्र जी है ना? तो ये अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहाँ से चल करके हमारे पास आ रहा है। BML ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हर एक को काम करने की छूट, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना। तो आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी हमारे महेश कोहली जी से कह ही रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उनने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रो का एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी हमारा कहाँ है? नहीं, अभी कहाँ चल रहा है? आंध्रा में चल रहा है। और इसको बनाने में कितना साल लगा था? 4 साल लगा था। और जो नीमच में बना रहा है वो इससे बड़ा भी है, और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते। ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतना में पर्याप्त हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई एक बड़ी जोरदार रोचक बात भी बताता हूँ। कभी कभी क्या होता कि पॉलिसियाँ तो लिखी होगी चाहे जो हो, ये भी है छूट देंगे, वो भी बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं आपका सुधाकर आप हमारे माननीय जयदेव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो जो बात कही बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने सारी बातों को करने के लिए अपने पावर सारे अधिकारियों को दे के रखे ही हैं कि आखिर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट को तुरंत पूरा कराना चाहिए। लेकिन वो तो लिखित में है, उसको करना है तो वो उनके दायरे में करेंगे। अब जो बगैर लिखा हुआ वो कैसे होना चाहिए? तो जैसे इनका विषय आया तो इन्होंने कहा कि हम इस पर और तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो पंप हाइड्रा के लिए, जो पंप स्टोरेज के लिए जो नीचे चंबल का पानी है वो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश दोनों के बीच का डैम है,
और ये पानी निकल करके मध्य प्रदेश से सीधा राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान वाले पानी को हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि वो पानी का विषय तो ऐसे ही रहता है। तो गर्मी के दिन में पानी निकाल देंगे तो बाद में फिर कष्ट आ जाएगा। तो इनने कहा अगर वो पानी निकाल नहीं देंगे तो हमारा नीचे का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इनने भी बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी लगाई। आमतौर पे पंप स्टोरेज में दोनों तरफ टैंक चाहिए। ये हैदराबाद से है तो और अच्छा, हमको मैंने पहले ही तारीफ कर दी हैदराबाद के लोगों की। उन्होंने कहा यार ऊपर नीचे डैम बना हुआ, ऊपर ही तो टैंक बनाओ, नीचे डालो ऊपर निकालो, क्या फर्क पड़ता है, दो क्यों बनाओ, एक ही बना लो। इनने और अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी। तो जो बड़े बड़े डैम हमारे हैं नीचे के, तो मैंने ऐसे मित्रता के बस मेरे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारी सबकी राज्यों की भावना भी बदल गई कि आखिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, ये भाई भाई तो है। हमारे पास पानी बहुत है मध्य प्रदेश के पास। तो मध्य प्रदेश का पानी राजस्थान में जाए तो 20-25 साल से मुकदमा चल रहा था। पार्वती, काली सिंह, चंबल का, इधर का पानी ज़्यादा क्यों ले ले, कम क्यों ले ले, इसी बात का झगड़ा। हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार बनी संयोग से, तो हमने दोनों ने मिलकर तय कर दिया कि 5% वो ज़्यादा पानी ले रहे, तो हमने कहा दे दें दो, वो कौन से पाकिस्तान वाले, अपने ही तो है, तो पानी तो देना है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, 250 से ज़्यादा नदियाँ हैं। लेकिन पता नहीं क्या ये लोकतंत्र की एक लीला होती कि वहाँ कांग्रेस की पार्टी थी या हमारी पार्टी थी, तो इस झगड़े में मालूम पड़ा 20-25 साल तक पूरा राजस्थान, हमारे यहाँ तो पानी की फिर भी पर्याप्त उपलब्धता, लेकिन वहाँ के 15-17 जिलों में बहुत भयंकर स्थिति थी। हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी और इस मामले को प्रोत्साहन देने वाले पीकेसी योजना का जो 70,000 करोड़ रुपये का पैसा लगना था, उनने कहा 90% भारत सरकार देगी, दोनों राज्यों को मिलाकर केवल 5-5% ही देना पड़ेगा। तो देने वाला दे रहा ना, हम परवारे लड़ रहे, पता नहीं क्या कांग्रेस को क्या हो गया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं। हमने जब पानी दे करके दोनों के बीच में बड़ी नदी जोड़ो अभियान का एक शुरुआत की, तो हमारे संबंध राज्यों के बीच परस्पर सौहार्द भी हो रहा है। और उसका परिणाम क्या निकला, मैंने उनसे कहा कि जरा ये पानी आप खोल दो तो हमारे इनका काम हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल से ही कर देंगे। उन्होंने बटन दबाया, 2-3 दिन में पानी खत्म हो गया, हमारा काम चल गया, परवार है तो काम हो गया। इनकी जो कठिनाई थी जिस पे हम 2-4 साल तक परेशान होते थे, और ये अगर राज्य के मुखिया इस बात को समझ ले तो और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आखिर आप बताओ, ये बिजली बनाएंगे तो क्या घर में अकेले जला लेंगे? बिजली तो देश के काम आएगी, देश के सारे लोगों के काम आएगी। और ये आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी का ही तो जमाना है, जिसके माध्यम से आप कार्बन क्रेडिट अलग लोगे कि नहीं लोगे, वो लेना भी चाहिए। आज के इस दौर में जितने प्रकार से लाभ ले सकते हैं, सरकार का मतलब सरकार के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ने का महत्व है। और देश के स्वाभिमान से दुनिया के सामने देश सिर तान करके सबके सामने खड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा है। आज का ये दौर इस बात के लिए बुला रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में जा रहा हूं तो मैं हर जगह यही कहता हूं कि आप यहां भी काम करिए, हमारे यहां भी काम करिए। यहाँ काम करने और मैं आपको निमंत्रण देने का मतलब आया कि यहाँ ताला लगा दो और वहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हैं उस काम को बढ़ाते जाइए। काम को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको मौका दिया और हमने आपको निमंत्रण दिया। और इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज हमारे परमात्मा ने हम सबको क्षमता योग्यता दी और कर्मवाद के आधार पर हमारे काम को बढ़ाना, आपके काम के बढ़ाने मतलब कई गरीब लोगों के घर में उनके लिए उनको समृद्ध करना भी है, उनकी गरीबी दूर करना भी है, भारत को समृद्ध करना ताकि भारत की सनातन संस्कृति से दुनिया का परिचय कराना, दुनिया के सामने हमारी अपने क्षमतावान लोग, नहीं तो हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के मतलब क्या रह जाएंगे। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का मतलब केवल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए, उसको राज्य राज्य में जाकर के परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियाँ हमारे विभाग के द्वारा जारी की है, उन पॉलिसियों पे तो काम होगा ही सही। उसके अलावा मुख्यमंत्री बैठ करके इस बात की गारंटी दे कि ये लिखा हुआ तो अपनी जगह, स्कूल बगैर लिखे में भी हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए वो सब देंगे, आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। आज इसी बात की आवश्यकता है।
तो अब भाषण तो बहुत हो गए, बात भी सारी आ गई। कितना अच्छा लगता है जब हमसे जिन जिन के संबंध आए उन्होंने सबसे मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए संबंधों की तारीफ भी की। और जब हमारी सरकार को, नवगठित सरकार को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 2 साल होने आए, हमने ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष का ही डिक्लेयर किया था। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से, कुछ तो हमने टूरिज्म के और बाकी अधिकारी बुलाए नहीं थे, हमने कहा हमारी यहाँ इसकी फिल्म दिखा करके काम चला ले, क्योंकि जितने सारे क्षेत्र हैं इतनी प्रकार की व्यवस्था बना दी है कि अब हमारे अधिकारी भी आधे टाइम तो बेचारे वो बोल बोल के ही सारी बात की अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब आपने भी दुनिया देखी है। तो मैं तो केवल आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि यहाँ के लोग जब मोती पहचान लेते तो आदमी तो पहचान ही लेते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य सरकार के द्वारा इस सत्र में आपका अभिनंदन है। और ये बात तय है कि परमात्मा की दया से हम सबको ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें, आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही, उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। एक बार फिर यहाँ के राज्य के लिए भी और वहाँ के लिए भी दोनों प्रकार से मेरी शुभकामना, बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट मिस्टर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां एमपी के उद्योगों को लेकर चर्चा हैदराबाद में की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं और निवेश के अवसरों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया है। निवेश वेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, पार्टनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, first and foremost, I extend my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh for sharing an inspiring vision for industrial growth in Madhya Pradesh. Sir, your guidance sets a strong foundation for our journey towards making Madhya Pradesh a leading destination for investment. Sir, in last 1.5 years, you have made us work so hard that we have allotted 5,000 acres of land to the different industries and paid almost 7,000 crore as incentive to the industry in last 1.5 years only. I am also thankful to all the speakers who enriched today's program with their insightful perspective and also speaking some good words about Madhya Pradesh. We deeply appreciate the effort of CII Telangana and its leadership, the entire organizing team, partner institutions, and all support staff. Most importantly, I thank all the participants for your time, engagement, and confidence in Government of Madhya Pradesh. With this, we conclude today's program with the hope to engage in a mutually beneficial relationship in the future. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. As a token of appreciation, Dr. Subbarao Pavuluri will now felicitate Honorable Chief Minister. Thank you, sir. Thank you very much.
Thank you very much, ladies and gentlemen. We now move on to the networking high tea, followed by one-on-one meeting with select industrialists. Thank you, Honorable Chief Minister. Thank you, dignitaries, and Jai Hind. यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल